So first of all, let's start with the very basic thing. What linked list is all about. Okay, so as we were talking about the problems why students face in linked list or some the data structures which are not contiguous is that you are not very much convenient in dealing with the references and pointers. So if you look upon the array, just to give you a brief intro about array, how it maintains itself behind the scenes is, if you look at this is nothing but the indices. Okay, indexes basically. So if you look at these indexes, what you come to know is that 0 1 2 3 4 5 6, and it goes on continuously till if you imagine the memory should be a continuous array type of memory, you'll see that this is a contiguous array. Contiguous means that each and every element sits adjacent to itself. Adjacent, not to itself, adjacent to an element behind it or in front of it. So now if I say that you have to reference an element which is sitting on index 3, you directly go and jump onto that index and search out for that array, which is nothing but index of 3. And this is way the arrays behave, right? And this makes array a very, very, very convenient data structure. But can you tell me that if I want to, like I assume that you are very good in arrays, right? If I want to add an element, okay, at the end of the array, what should be the time of adding an element to the end of the array? Order of n. Okay, and anyone else? Amit? O of n, so big O of n, order of n. Okay, Ashish? So order Order of? n. Why? I'm asking Ashish. Yeah. Ashish, Yes, sir. why order of n? I don't know, sir. Why did you say order of n? Okay, Abhishek, Yes sir. why order of n? सर सॉरी सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कि हमें अरे के एंड में एक एलिमेंट अपेंड करना है. यस सर. What would be the time complexity for that? सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में लगेगा तो फिर दिक्कत की बात है. हाँ जी बताइए. सर ऑर्डर ऑफ एन होगा सर. क्यों होगा ऑर्डर ऑफ एन? सॉरी सर मतलब सर उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर 1 होगी इसकी, क्योंकि सर इंसर्ट तो कहीं भी कर सकते हैं ना सर इसका. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके आर्यन. I think it will be Aryan, your voice is not audible. Just make sure that your internet connectivity is good. Meanwhile, I'll go to Mehak. Yes, sir. What would be the time complexity for this? So it will be order of n, as the size of the array is an n, and n is the number of elements in the array. So n क्यों है? Why n? I'm still not getting. Array का size अगर n नहीं है, let's say मैं कह रहा था array का size x है, तो अब क्या होगी time complexity? okay. Okay. Who is this Bilas? Bilash, or what's the name? Yes, sir. Yeah, बताओ. Order of n है, क्यों है order of n, और order of n नहीं है तो क्यों नहीं? Don't know, sir. ठीक है. So yeah, and now I am coming back to Varun and Amit, who were the two students who told me order of n very confidently. So Varun, why order of n? And Sir, we are given the array of fixed size, right? Now, if the array is already full and we need to insert the element at the last index,
what we need to do is we need to create a new array of that size first, copy all the Mhm. elements, and then we need to insert the last element. So we also need to traverse from 0th index to 6th index. That's the reason I said order of n. Okay, and what would be the asymptotic notation for that? Asymptotic, big O of n. Why big O? Because it's the worst, like Why then? What would be the best case for this? best One case part. is best case. I'm not that sure about it. Best case. So. What would be the average case for this? Like we are inserting anywhere between the array. No, I The said best just the last part. Just the last. Sir, the best and worst case will both be order of n only, sir. Yeah, that's right. So Varun ne answers jo diya. Let me just explain everyone else. I just wanted to know that how good are your basics before moving to linked list. If you're not good with these basics, how will we move to the non-contiguous data structures, right? It's a very, very, very basic thing to know about. So this is the way I am going to teach. I'm not going to, pull you up in the questions and let you know that these are the ways. This is the question, fancy question you have to do, unless and until you're good with the very basics. So अब यहाँ पे हमारा order of n क्यों है? मैं अभी asymptotic notations पे नहीं जाऊंगा. हम पहले समझेंगे कि order of n क्यों है. जितने भी लोगों से मैंने पूछा, किसी को कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि order of n क्यों है. अगर वरुण ने कहा है तो वो सही है, या अमित ने कहा है तो सही है. You need to understand why it is order of n first of all. अब हमें array में सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि अरेज डायनेमिक नेचर में नहीं होते हैं. व्हाट इज दिस डायनेमिक नेचर? यू नीड टू नो. whomsoever's mic is on, please switch it off. और डायनेमिक नेचर के नहीं होते, इसका मतलब ये है कि हमारी अरे एलोकेशन मेमोरी में कहाँ होगी, ये समझना आपको जरूरी है. अभी मैं उस डेप्थ में नहीं जा रहा हूं. अभी मैं ये समझाऊंगा कि डायनेमिक अरेज का मतलब क्या होगा और क्या नहीं होगा. फिर हम देखेंगे आगे जाके कि मेमोरी एलोकेशन कहाँ होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक नेचर का मतलब हुआ, इफ यू हैव लर्नड अबाउट अरेज अ बिट, यू इंट्रोड्यूस. अगर मैं जावा के सिंटैक्स की बात करूं तो समथिंग लाइक दिस, राइट? समथिंग लाइक दिस. यू आर गोइंग टू से दिस इज माय ARR and then new, and then you will say int, and then you will just pull in some 6 of size. This is the syntax you're going to use. Now this says that you're initializing a 6 size of memory inside the, basically whatever the RAM you're using. So this is the memory you're going to initialize behind the scenes. Now what happens is that this memory is going to be of fixed size. Now fixed size means that 6 elements आप डाल सकते हो. 6 elements में जितने ऑपरेशन परफॉर्म करने आप कर सकते हो. Now in case the use case comes that 6 की हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें इससे ज्यादा मेमोरी की जरूरत है. So what shall we do? Now inherently, if you go with the C or C++, अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे malloc calloc functions पढ़ाए जाते थे. जो डायनेमिक अरे, जो कि heap एक डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा नहीं, but it's also a part of your memory. Memory is made up of 2 major data structure which are heap and stack, that is stack. So now what happens is, जब आप डायनेमिक एलोकेशन की बात करते हो तो हीप में बनता है. Now what is this dynamic? डायनेमिक कहता है कि अगर मेरे पास 6 साइज की अरे है तो हमें कल को 7 बनानी है, तो इट इजीली कन्वर्ट्स इनटू द 7, राइट? देन हम कल को 8 बना सकते हैं. बट अगर मैं स्टैटिक अरे में जाऊंगा, दैट वोंट गिव अस दिस फ्लेक्सिबिलिटी. 2D arrays, 3D arrays, 1D array, whatever it is, this flexibility won't be given to us. अब यूज केस दोनों डायनेमिक एंड स्टैटिक के अलग है. Most of the cases static arrays has been enough to suffice all the use cases you have been presented. But what happens is कि हमें पता होना चाहिए कि डायनेमिक अरेज क्या है. ठीक है. अब अगर मैंने ये बोला था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, सबसे पहले आपको ये पता करना था, जैसे वरुण ने बताया, कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एट द एंड अपेंड करने के लिए. जब आपको पता है कि साइज 6 है तो क्या 7th एलिमेंट ऐड हो सकता है? मैं यस और नो? No, sir. विलास? Sir, if array size is fixed, then we can't. यस. तो कहने का मतलब है कि अगर अरे साइज फिक्स है तो हम 7 आगे नहीं डाल सकते उस अरे में, डाल सकते हैं दूसरे अरे में. Am I, it's understood to everyone now, right? ये स्टेटमेंट सबको समझ में आई? हम डाल सकते हैं लेकिन दूसरे अरे में. ठीक है.
तो व्हाट इट मींस इज कि तुम दूसरा अरे दूसरी मेमोरी क्रिएट करोगे, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कॉपी करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू पुल इट द लास्ट एलिमेंट यू आर गोइंग टू पुल इन। और अब इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं। महक आप बताओगे अगर मेरे को यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो क्या प्रोसीजर होगा? Sir, we'll give the index value and then we'll add the element. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? So by iterating it, so the iteration will be नो, you are on the we'll iterate. Hmm? So we'll iterate it to the size n, and then whatever the index we have to add the value, we'll take it like array of index ith index, and then we'll add the new value to it. No. श्वेता, Yes, sir. अगर हमें थर्ड इंडेक्स में इंसर्ट करना है और थर्ड इंडेक्स में पहले से ही वैल्यू पड़ी है, व्हाट विल वी डू? व्हाट वुड बी द ऑपरेशंस बी? Sir, by shifting we can do this. शिफ्टिंग का मतलब क्या है? एक एक स्टेप बताओ मेरे को एग्जैक्ट। नई अरे क्रिएट करोगे कि नहीं करोगे? Yes, sir. नई create करके उसमें add कर सकते हैं. नहीं कर सकते नहीं है। आई जस्ट नीड इन यस और नो, इट्स अ बाइनरी 1 और 0। करेंगे कि नहीं करेंगे? सकते नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर लगेगा? लेट्स से मैंने न्यू एरे बना दी, अब Sir, then we will add a new element at the third index. अच्छा थर्ड इंडेक्स में मैंने यहाँ पे x डाल दिया और इन सब में क्या रहेगा? Sir, fourth, fifth, then previous value of third index, and then fourth, fifth, sixth. तो आप कह रहे हो यहाँ से यहाँ तक x - 1 एलिमेंट्स रहेंगे 0 to x - 1 और यहाँ से यहाँ तक x to n, राइट? Yes, x sir. plus 1 to n, am I right? Yes, sir. Sangeeta, is this right? Sir, I don't know. Okay, so you should be knowing this. अब तुम्हें और पूछूंगा, why do you don't know? What makes you make this a doubtful case basically? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? Sir, new array create करेंगे. न्यू एरे क्रिएट करेंगे, बट व्हाई करें? व्हाई क्यों करेंगे? ये मैं न्यू एलिमेंट जोड़ना है इसलिए. ठीक है, यशवनी, सॉरी यश, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस योर नेम. So Yashaswini. Yashaswini, okay, sorry. So what's the case over here we are dealing with? क्या आपको समझ में आया अभी तक? So to insert a new element in an array, we are going to create a new array, iterate till the index that we want to insert it into. We'll use we'll add the element in that position and we'll copy the rest of the elements of the array. और इसमें हमें कितना टाइम लगेगा? So suppose if we are inserting at the third position, then big of n - 1 will be the. Why n - 1? No, sir. I mean, if we are putting the element in the nth position, then it will be n - 1. Okay. So general case में क्या रहेगा? मतलब why big O? Why did you use big O? So it's the asymptotic notation of best and worst case. चलो, okay. Tanmay, is she right? Yes, sir. इसने Sir, क्या? exactly, we will. Yes. We will first make a new array
and then print to the previous one of the elements. We need to change like at third position. Got that. So you're saying So- that हम पहले कॉपी करेंगे 0 से 2 पोजीशन, फिर x डाल देंगे x पोजीशन पे, एंड देन फ्रॉम x + 1 से n तक फिर कॉपी कर देंगे, यही कहना चाह Yes, sir. Yes, sir. ये सबको क्लियर है? संगीता, श्वेता, वरुण, सॉरी यशस्वनी, विक्रम, Yes, oh sir. not विक्रम. Yes, sir. Okay, so everyone got this, right? Now हमने ये समझा कि ये ऑपरेशन क्या था। तो अब सेम केस मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और हमको बिलाश बताएगा कि अगर हमें थर्ड पोजीशन से डिलीट करनी है एंट्री तो कितना टाइम लगेगा। बिलाश, बिलाश, आर यू देयर? Yes, sir. यस, व्हाट डू यू थिंक? अगर हमें थर्ड से डिलीट करनी है, व्हाट, हाउ मच टाइम इट्स गोइंग टू टेक? Don't know, sir. शुभम, आशीष, Yes, sir. कितना टाइम लगेगा थर्ड एंट्री को डिलीट करने में? ओके, अमित, सर कितना टाइम लगेगा थर्ड एंट्री को डिलीट करने में? सो वर्स्ट केस बिग ऑफ n वर्स्ट भूल जाओ, मेरे को जनरल बताओ। ठीक है, तुम्हें बिग ऑफ एन का, राइट? व्हाई Yes. बिग ऑफ एन? सर हम क्योंकि हम अरे इटरेट करते हैं फ्रॉम 0 टू टिल क्यों इटरेट करेंगे? इटरेट क्यों करेंगे? मुझे समझ नहीं आया। मुझे थर्ड एंट्री डिलीट करनी है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे ये मैं ऐसे नहीं लिख सकता कुछ। यस इसका यूज नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्या है इसके बाद क्या करेंगे? मान लो हमें ये इंडेक्स में वैल्यू मिल गई, अब क्या करोगे? Basically you were saying right, most of you are not even good with the basics, right? Arrays के deletion और updation में दिक्कत आ रही है तुम लोगों को। I'm not talking about few students who are working or who know, but most of the students are not even good with the basics, right? Why is it happening? I don't know, but let's dig up the basics first. इंग्लिश को छोड़ो अभी। अब देखो, इस अगर अरे में अगर हमको थर्ड एंट्री डिलीट करनी, मैंने पहले बोला कि ये कॉन्टिग्यूअस अरे होती है, आप यहाँ पे डिलीट नहीं कर सकते उसको, इस सेल को नहीं हटा सकते, ये सेल अपनी जगह पे रहेगा। ये मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है, यू कैन नॉट डिलीट दिस सेल, यू कैन नॉट मेक 0 1 2 उसके बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 है। 3 पोजीशन हमेशा इंटैक्ट रहेगी मेमोरी के अंदर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अरे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे? आप बताओ मेरे को। मैं सर विल मेक न्यू अरे। हाँ सर इंडेक्स है ना, हम एक उसको टारगेट इंडेक्स का वैल्यू है ना, मतलब a ऑफ 3, तो एक टारगेट वेरिएबल में हम लोग असाइन करते हैं। अगर ठीक है, हाँ, अगर वो इफ कंडीशन में हमको हिट हो गया तो x प्लस मतलब उसके नेक्स्ट इंडेक्स हम न्यू अरे में इंसर्ट करते हैं। तो हमें इसके पहले के एलिमेंट नहीं चाहिए होंगे? चाहिए सर, उस from पहले 0 हम ये पहले के एंट्री करेंगे और फिर x हाँ। प्लस 1 से n तक यहाँ, हाँ, राइट? yes, sir. मैं इजी, राइट? So basically we have to shift the elements in the array. So yes, we'll have ये to shift shifting it ही तो from हो the रही है, index. right? Yes, sir. This- So he this- is right. Okay, now there are two things which we can do. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। ट्विस्ट नहीं कहूंगा इसको, हम कहेंगे हम थोड़ा सा और चीजें सीखते हैं। ट्विस्ट नहीं बोलूंगा इसको मैं। लेट्स से हमारा 3 एलिमेंट डिलीट करना है, हमारे पास 2 प्रोसीजर्स हैं। एक जो महक ने बोला कि हम शिफ्ट कर सकते हैं, एक जो अमित ने बताया कि हम न्यू अरे क्रिएट करेंगे और उसमें एलिमेंट्स कॉपी कर देंगे। अब हमें ये देखना होगा, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब आप शिफ्ट करोगे इस एलिमेंट को यहां से यहां, ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां, तो आखिरी सेल की जो वैल्यू है वो नल हो जाएगी।
या जीरो नहीं कहूंगा, लेट्स से समथिंग विच इज नॉट ऑफ योर यूज, राइट, और वो नल नहीं होगी, बेसिकली उस 7th इंडेक्स में जो एलिमेंट था वही पड़ा होगा, वही रिपीटेड एलिमेंट यहाँ पड़ा होगा, फिर 6 फिर 5 फिर 4 ऐसे करके ये एंट्री हो जाएगी, मतलब ये डुप्लीकेटेड वैल्यू है। अब हम इसका इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं, लेट्स से यू डोंट हैव टू go with the another array, you can use this technique, but this entry you cannot delete it, you cannot delete this entry। आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि मेरा अरे यहीं तक है, आप वर्चुअली अपने लूप्स में और हर जगह यूज कर सकते हो, the size remains n-1, n से n-1 हो जाएगा, then you know that the size has decreased, then you can decrease again and the size becomes n-2, but for every removal of the element you are going to take big of n time। why big of n or why theta of n or omega of n, ये asymptotic notations का part है, this we will be talking about, this we will be taking care of in further sessions। तो ये सबको क्लियर है, महक, स्वाति, Yes. संगीता, Yes, sir. Yes, sir. Yes, सबको sir. क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि अरे में अपडेशन और डिलीशंस के क्या हाल है, सॉरी अपडेशन नहीं, डिलीशन और इंसर्शन। तो अब मेरे को ये बताओ, कौन बताएगा, पिंकम, हु इज दिस पिंकम, am I like pronouncing it right? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yeah, so अब मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि लेट्स से हमें Yes, sir. 6 नंबर एलिमेंट पे, अब 6 पे वैल्यू पड़ी हुई थी -1, अब मुझे यहाँ पे डालनी है -2, कितना टाइम लगेगा? सर अगर हमारा एरे का साइज अगर यहाँ पे 8 है तो हमें सिक्स पोजीशन तक हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा एंड देन हमें वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कर सकते a of 6 equals to -2? यस सर। तो ट्रैवर्स करने की जरूरत पड़ेगी? नो पड़ेगी? सर, तो इस केस में सर कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट होगा सर। ठीक है, so why did you said we have to traverse the array? Sorry sir, No, it's okay, you need to keep these things in mind itself. It's good that this question came up. Okay, now we have gone through all the updation, deletion and insertion cases. Now अब हम पूछ सकते हो, अब you can ask me कि सर क्यों लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी? डायरेक्टली लिंक लिस्ट में कूदने का मतलब हो गया आपको कुछ नहीं पता कि why this is the same question कि सर जब पिज्जा था तो बर्गर की जरूरत क्यों पड़ी? You have no, दोनों का अपना अपना यूज केस है, सबका अपना टेस्ट है, राइट? सो देयर मस्ट बी सम प्रॉस एंड कॉन्स इन द अरेज आल्सो, दैट्स व्हाई वी हैव मूव्ड ऑन टू लिंक लिस्ट, और यू कैन से नॉट मूव्ड ऑन बट वी डेवलप दैट डेटा स्ट्रक्चर फॉर सर्टेन यूज केसेस। सो हमें पता चला कि हमें अपडेशन मिल गया, डिलीशन मिल गया और इंसर्शन मिल गया। तो अब जल्दी से मैं रैप अप करूंगा और ये बताऊंगा कि इंसर्शन एंड डिलीशन, इन डिलीशन एंड अपडेशन में बिग ऑफ n लगेगा और यहाँ पे इंसर्शन में बिग ऑफ 1 लगेगा। स्वाति मैंने सही लिखा है? Yes, sir. अच्छा, अभिषेक मैंने सही लिखा है? यस सर। आशीष मैंने सही लिखा है? Yes. अमित? जसप्रीत? Yes, sir. अच्छा, और शुभम, संगीता, पिंकम, व्हाट अबाउट यू? सर अपडेशन में भी कांस्टेंट टाइम ही लगेगा क्योंकि अभी वैल्यू को अपडेट किया था -1 to -2। ठीक है, अपडेशन में 1 लगेगा, ठीक है, ये मैंने गलती कर दी, डिलीशन में ऑफलाइन। अब सही लिखा है तन्मय? No sir. क्यों? बाकियों को बताओगे क्या मिस हो गया? I think that updation will take more time than deletion. अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? अभी जब हम अपडेट कर रहे थे तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा था? Sangeeta, any Yashashwani, any addition on this? सर हेलो। Yes.
सर अपडेशन में तो सर ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा ना सर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये आप लोग बताओगे मेरे को। यस सर, और सर डिलीशन और इंसर्शन के लिए सर ऑर्डर ऑफ n, राइट सर। यशस्वनी इज राइट। Yes, sir, he's correct. संगीता इज यशस्वनी राइट। Yes, sir. वाई इज शी राइट। अपडेशन में तो n लगना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ट्रैवर्स करना पड़ेगा हमें। वाई यशस्वनी एंड others are right. संगीता ओके मुझे 90% ऑफ द आंसर्स गलत मिले, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, इसका मतलब इंसर्शन में और डिलीशन में मैं बार बार बता चुका हूँ ऑर्डर ऑफ n, हम इतना बड़ा डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। और अपडेशन में लास्ट मैंने चीज बताई है, उसमें ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम लग रहा है, उसने बोला भी था, देन आल्सो यू हैव मिस्ड इट। व्हाई इज एवरीवन मिसिंग दीज पॉइंट्स? अगर ये नहीं समझ में आएगा तो अरे के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है, चाहे आप मर्ज सॉर्ट भी सीख लो। Is this thing clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. To everyone, right? Got it, sir. यस सर। सबको समझ में आ गया बिल्कुल एकदम। तो जसप्रीत अब बताएगा कि अपडेशन में n क्यों नहीं लगेगा टाइम। जसप्रीत Vilas, please just mute your mic first. Yeah, Jaspreet, can you come up? Jaspreet. Okay, so he's not responding. What I'll do is we'll just come up with the next part, which is why we moved on to linked list. अब हमने देखा कि अरेज में अपडेशन बहुत इजी था पर इंसर्शन और डिलीशन इजी नहीं था। इसकी वजह से हम एक नए कंसेप्ट पे आए थे, वो थे डायनेमिक अरेज। नाउ डायनेमिक अरेज की एक प्रॉपर्टी होती है, दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज साइज वेरी इजीली। ओके, तो दे कैन इंक्रीज डिक्रीज साइज वेरी इजीली। बेसिकली वो एट द एंड में अपना अपेंड कर सकते हो, राइट, और आराम से आप मतलब साइज बढ़ा सकते हो अरे का। बट बिहाइंड द सीन्स व्हाट केलॉग एंड मेलॉग डज इज, वो आपको पता होना चाहिए, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द C and C++ concepts, but the same thing happens that new array has been initialized, it copies all the arrays with null values and copies all the values existing values and then returns you the new reference pointer to the new array. Basically वहां पे भी न्यू क्रिएशन हो रहा था, बट ये बिग ऑपरेशंस के लिए या फिर जहां पे कॉन्टिग्युअस मेमोरी की एलोकेशन की जरूरत नहीं है, लाइक योर फाइल स्ट्रक्चरिंग बेसिकली इफ यू हैव लर्नड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पे ये काम नहीं आता। सो बेसिकली हम गए नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी में। नाउ व्हाट इज नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी? पहली बात तो कॉन्टिग्युअस मेमोरी हमें समझ में आया। नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी सेज दैट अगर ये मेमोरी ब्लॉक है और ये मेमोरी ब्लॉक है, अगर इसका एड्रेस x है तो इसका एड्रेस x+1 नहीं होगा, नेसेसरी नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी x+3, x+9, व्हाटएवर इट इज, इट कैन बी एनीवेयर इन द मेमोरी। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप यहां से शुरू कर रहे हो तो यहां तक कैसे जाओगे? तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, वो है पॉइंटर का। ये पॉइंटर क्या कह रहा है? ये पॉइंटर ये कह रहा है कि x के पास x+1 का फोन नंबर पड़ा है, तुम्हें x+1 का फोन नंबर चाहिए, तुम x को कॉल करोगे, x को x+1 को कॉल करेगा और फिर तुम बात कर सकते हो। सिमिलरली एक और बंदा बैठा है यहाँ पे जिसका एड्रेस है x+11, ये है x+1, ये x+11, ये x+2 है लेट्स से। तो यहाँ पे अगर तुम्हें x+11 के बंदे का एड्रेस चाहिए तो यू हैव टू गो थ्रू दिस राउट बेसिकली, ये तरीका है। अब
यहाँ पे सोचने की बात आती है, अभी हम पॉइंटर्स पे आएंगे, पॉइंटर्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उससे पहले हम बेसिक्स में जाते हैं। इस डिब्बे को, the block I am stating over here, it has two parts, which is data. Data can be anything, your name, employee address, employee name. A data can be even an image, a data can be anything, any possible thing. For what very sake of very convenience to understand, I would say it's nothing but your data types. Integer ले लो, string ले लो, ऐसा कुछ डेटा पड़ा है यहाँ पे। और ये होता है नेक्स्ट पॉइंटर। नेक्स्ट को रट मत लेना, नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट, इट इज इंडिकेटिंग कि भैया नेक्स्ट ब्लॉक कहाँ पड़ा। तो यहाँ पड़ा होता है मेमोरी का एड्रेस, एड्रेस मतलब x+2 पड़ा होगा। इसके ब्लॉक में क्या पड़ा होगा? मैं सर इस ब्लॉक में क्या पड़ा होगा? सर मेमोरी का एड्रेस। किस मेमोरी का एड्रेस? सब लिखा हुआ सामने, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। सर नेक्स्ट मेमोरी का। गलत। कोई और? सर x+11 यस, नोड, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। नेक्स्ट नोड का एड्रेस नहीं, x+11 बोलोगे, सब कुछ लिखा है यहाँ पे। yes sir, x+11 तो x+11 पड़ा होगा इस पर्टिकुलर पार्ट में, और यहाँ पे कुछ भी पड़ा हो सकता है, फर्स्ट ब्लॉक में कुछ भी पड़ा हो सकता है। तो अब अगर हम और अच्छे से देखें नोड के स्ट्रक्चर को, तो ये बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पड़ा होगा आपका डेटा, यहाँ पे पड़ा होगा नेक्स्ट पॉइंटर, और नेक्स्ट पॉइंटर का मतलब कुछ नहीं है, ये है नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस ऑफ मेमोरी ब्लॉक। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. yes sir पक्का? यस सर। तो अगर मैं ऐसे एक लिंक लिस्ट बना के तुम्हें दिखाऊं, ऐसे यूं, ये एक लिंक लिस्ट है, बहुत बढ़िया सी लिंक लिस्ट है, मजा आ गया इसको देख के। ऐसे 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 देखो, इतनी प्यारी सी लग रही है, लेकिन इसमें एक गेम है। अब मेरे को बताओ कि इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए क्या किया जाए? सर एक हेड नोड का एड्रेस तो होगा अपने पास। हेड नोड का एड्रेस होगा। हेड नोड के एड्रेस में क्या सेव होगा? इस हेड नोड में क्या होगा? फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो कहाँ पे बिलोंग करता है? एलिमेंट नहीं बोलते हैं, लिंक लिस्ट में रट लो, लिंक लिस्ट में नोड बोला जाता है। नोड फर्स्ट नोड कहाँ है, उसका एड्रेस। यस। अब अगर इसका एड्रेस है 23, इसका एड्रेस है 89, इसका एड्रेस है 101, इसका एड्रेस है 2000, लेट्स से, तो हेड पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा होगा कि मैं 23 नंबर की मेमोरी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा हूँ, और हेड को कुछ भी नहीं पता। समझ में आया? हेड को कुछ नहीं पता, हेड को बस इतना पता है कि मैं एक जगह में पॉइंट कर रहा हूँ और वो है 23 पे। अब मेरे को बताओ, अगर हमें सिर्फ हेड की वैल्यू दे दी जाए तो पूरी लिंक लिस्ट का एक्सेस मिल जाएगा हमें? महक, So if we know that head is, we know the address of head, and then rest of the nodes are interlinked with each other, and they're pointing to the next memory of the next node. So yes. So you mean that all the nodes would be accessible if we get the address of the head, right? Yes. That's what you mean, right? Yes, sir. Okay, that sounds good. तो अगर हमें समझ में आ गया कि we have the address of head, we have all the linked list being nodes connected to each other very nicely, so we can get the access of all the linked list nodes. But अब मेरे को बताओ, अगर ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा तो यहाँ क्या सेव करना चाहिए? अभी क्या नल, ये वाला, ये ऐसे जैसे पानी निकल रहा है ऐसे, ये वाला? नो सर, NULL क्या करता है? NULL क्या करता है? Sir, it says that basically it is the end of that linked list. बस यही बताएगा कि ये एंड है, और कुछ नहीं बताता। और वहां से हम इंसर्शन भी कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं अगर बढ़ाना चाहे तो। अच्छा, तो इस नल की प्रॉपर्टी क्या है जावा में? व्हाट इज नल बेसिकली? Null indicates that you have nothing to point, right? Yes, sir. You have Yes, no sir. memory address to point. This is what null means, basically. अब बारी आती है जो हमने क्वेश्चंस अरे में पूछे थे, वही सेम क्वेश्चन में पूछूंगा अब, लेकिन थोड़ा फास्ट। इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन।
ये 3 चीजें, और अब एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कौन बताएगा। सबसे पहले बारी आएगी आर्यन की, वो बताएगा कि इंसर्शन की क्या हाल है यहाँ पे। आर्यन, यस सर। बताओ इंसर्शन क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, और कहाँ होगा, क्यों नहीं होगा, कहाँ होगा। सो बेसिकली इंसर्शन कहाँ होगा, कैसे होगा, और टाइम, ये 3 चीजों के आंसर बताओ। सर इंसर्शन हम किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, मतलब इफ वी वांट टू ऐड समथिंग एट लास्ट पोजीशन एट एंड, तो एंड पे भी हो सकता है सर, बिगनिंग में भी हो सकता है सर, और एनीवेयर इन द मिड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब तुमने कहा कहाँ का आंसर हो जाएगा, एंड, बिगनिंग, मिड, एंड, बिगनिंग और मिड, राइट। कैसे Yes, sir. होगा, एंड में कैसे होगा? Sir, will traverse through the whole linked list. यशस्वनी, इज ही राइट? क्या हमें ट्रेवर्स करने की जरूरत पड़ेगी एंड पर? So we will just see where that null is. If it is in the end, if we are supposed to add the element in the end, then we will see where the null is. And ओके then we ओके ओके, will वेट वेट वेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट इसने उठाया। क्या लिंक लिस्ट में नल सिर्फ एंड में होगा या बीच में हो सकता है? इसका आंसर कौन देगा? दिव्यांशु। सर सिर्फ एंड में होगा। सिर्फ एंड में होगा, अच्छा। जसप्रीत। सर एंड में ही होगा क्योंकि उसके पास कोई है नहीं, कोई पॉइंट करने को आखिरी में। हाँ, बेसिकली वो नल्ला है। If you say in the mean layman words, the end pointer and node tells us that there is no one to point in front of me. So that's why null will always be in the end. Ab Yashaswini, you have a point. Do we need to check in the linked list that where is null? Or we know that where is null? so it is in the end only. It will be in the end only. So now I come back to you that we had a point from someone that we have to traverse the linked list. So do we have to traverse the linked list or not? No, sir, we do not need to traverse the linked list. Okay, so K.A. Subramanian, do we need to traverse or not? Mehak. Yes, sir. Is Yashaswani We right? will need to traverse the linked list. Okay. Tanmay? Yes, sir. If we have to add at the last, we need to traverse. We need to traverse. Why we need to traverse? So because we need to change the location of our this head, the pointer which point head of that linked list. नहीं, इसको समझने की कोशिश करो। अगर हमने हेड पॉइंटर बदल दिया तो तुम पीछे के सारे नोट्स का एक्सेस भूल जाओगे। अगर हेड पॉइंटर यहाँ आ गया ना तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो हमेशा याद रख लो इस बात को, जो भी इस वीडियो को सीरियसली देख रहा है, हेड पॉइंटर नेवर गेट्स अपडेटेड इन द लिंक्ड लिस्ट अनलेस एंड अनटिल आस्क्ड सो। अगर कहा गया है तो ही करना है, वरना हेड पॉइंटर को कभी छेड़ा नहीं जाता लिंक्ड लिस्ट। ओके, ठीक है? फॉर एवरीवन, फॉर ट्रैवर्सिंग, फॉर डिस्प्लेइंग, फॉर एडिशन, फॉर डिलीशन, जो भी करोगे हेड पॉइंटर चेंज नहीं होता। हाँ, अब कब होता है वो मैं बताऊंगा। लेकिन इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। लेकिन मैंने तो अभी कोई बात समझाई नहीं, मेरे को आंसर ही नहीं मिला। एंड में ऐड करने का क्या प्रोसीजर है, कौन बताएगा ये मेरे को? Can I say, sir? Yeah, whomsoever wants to add. Varun, sir. Okay, Varun can also add. Anyone else? Sir,
we first will take a variable of type node. Yeah, you and can we'll say we assign- can take a temp variable which will be Yes, pointing to the first to node. first node, and then we'll traverse using temp.next. Temp is equal to temp.next again and Yeah. again until it reaches null. Yes, so basically And- वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम लास्ट नोड तक आएंगे. अभी हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे. I'll just move on to the procedure. The procedure is like ये महक, स्वाति, संगीता, everyone, तन्मय, whomsoever wants to see linked list का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो चुका है. So just be here with me and take a note of this. That जैसे वरुण ने बताया हम एंड तक जाएंगे टेम्पररी वेरिएबल यूज करके. जो भी अभी कोड इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जा रहा मैं. प्रोसीजर देखते हैं. हम एंड तक जाएंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे, हमें उसमें वैल्यू डालनी है. लेट्स से यहाँ पे संगीता, और यहाँ पे इसका एड्रेस है. जो भी एड्रेस नहीं होगा शुरू में तो नल, क्योंकि इसके नेक्स्ट में कुछ नहीं पड़ा. लेकिन इसका खुद का एड्रेस कुछ होगा जो कि होगा हमारा 3000 या कुछ भी हो सकता है यार. ये हो सकता है 04 भी हो सकता है, एनीवन. तो यहाँ पे हम 04 डाल देंगे. इसका मतलब है हमने यहाँ पॉइंट कर दिया. एम आई राइट महक? Yes, sir. तो हमें कितना टाइम लगा जल्दी से बताओ ये प्रोसेस करने में? Order of n, sir. n क्या है यहाँ पे? Sir, number of nodes. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? तन्मय, यशस्वनी एंड अभिषेक एंड ऑल. Yes, sir. राइट, सबको समझ में आ गया ये बात? Yes. चलो ठीक है, हमने एंड का काम खत्म कर लिया. ऑर्डर ऑफ एन लग गया. ऑर्डर ऑफ एन लग गया यार. अरे में भी यही काम हो रहा था. क्या हमने बढ़िया किया है? बेकार कुछ नहीं, फायदा उल्टा प्रोसेस और लगा दिया. सारे पॉइंटर नोड बनाओ, ये करो, बवाल और पाती. क्या फायदा हुआ ये सब करने? कुछ फायदा नहीं हुआ. फायदा हुआ है? नहीं. अब मैं बताता हूँ फायदा कैसे होगा. हुआ है सर. जब तुम इतना काम कर सकते हो तो क्या तुम यहाँ पे टेल पॉइंटर नहीं बना सकते हो? जब तुम लिंक लिस्ट बना रहे होगे तो टेल पॉइंटर अपडेट नहीं कर सकते साथ साथ में? Yes, sir. Yes, sir. सब बताओ, सब बोलो मेरे को, यस या नो? Yes, sir. यस सर. तो अब जब अपडेट करना होगा तो क्या हमें पता नहीं है डायरेक्टली टेल में जाना है और टेल यहाँ पे पॉइंट कर देगा और फिर टेल अपडेट करके टेल इसको पॉइंट कर देगा. क्या ये कांस्टेंट टाइम में नहीं हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर. यस बताओ सर और एक बार समझाइए सर, थोड़ा मेरा नेट इश्यू हो गया. हाँ ठीक है. तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम हेड पॉइंटर बना सकते हैं तो क्या टेल पॉइंटर भी बना सकते हैं कि नहीं? यस सर. अब पूछो कैसे बनाएंगे. पहला सवाल आता है कैसे बनाएंगे. यस तो सबने बोल दिया. लेट्स से सबसे पहला नोड आया, यहीं पे हेड पॉइंट करेगा, यहीं पे टेल पॉइंट करेगा. अब नेक्स्ट पॉइंटर आया, मतलब नेक्स्ट नोड आया. अब इसको पॉइंट करने के लिए हमने इसमें इसका एड्रेस डाल दिया. यहाँ पे x+1 था, हमने यहाँ पे x+1 डाल दिया. लेकिन टेल को भी सीधे यहाँ से पॉइंट ना करके यहाँ करा दिया. टेल यहाँ से हट गया, अब टेल इसको पॉइंट कर रहा है. ऐसे करते करते हम टेल हमेशा एंड पे पॉइंट करेगा. तो जब भी हमें नोड एंड में इंसर्ट करना है तो क्या ये कॉन्स्टेंट टाइम में हो गया कि नहीं हो गया? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हमें बिगिनिंग में करना है तो कितना टाइम लगेगा? Order of 1. मैं One pass. Order of 1 सर, 1 pass. सुब्रमण्यम कितना लगेगा? ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा कि नहीं? यशस्वनी, संगीता? Order of 1, sir. Yes, order of 1, sir. One, sir. ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ 1 लग गया. अब बताओ, मजेदार बात है मिडिल. अब आया मजेदार क्वेश्चन. मिडिल में बताओ कितना टाइम लगेगा? लेट्स से हमें यहाँ इंसर्ट करना है. Order of 1. पक्का? Order of n, sir. Order of n. N सर. We अब go of n. बताओ, एक मिनट, इस पे हम वोट, इसमें मजा आएगा. इस पे वोट करते हैं. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, एक एक नाम बोलता जाऊंगा और तुम्हें बताना है n या 1. नीचे से शुरू करूंगा. यशस्वनी? सर अगर टेल अगर नहीं, मिडिल में करना है. ये है नोड, ये है लो, खत्म. हेड यहाँ है, टेल यहाँ है, और हमें यहाँ करना है. अब बताओ. अगर सर मगर टेल खत्म. उधर है. टेल तो हमेशा एंड में ही होगा ना. टेल पहले होता क्या? टेल का मतलब क्या होगा? नहीं सर. हाँ तो सर ऑर्डर ऑफ n होगा सर. चलो, यशस्वनी ने कहा ऑर्डर ऑफ 1. एक वोट है n के लिए. वरुण? Order of n, sir. +1.
तन्मय, The order of n. ऑर्डर ऑफ एन। श्वेता, Sir, order of n. संगीता, सर ऑर्डर ऑफ याद रखना जो जो ऑर्डर ऑफ एन बोल रहा है मैं करवाऊंगा, और सबसे पहला नाम संगीता का है। आशीष, ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन। देखा, जैसे ही मैंने बोला मैं करवाऊंगा, ऑर्डर ऑफ वन आंसर आ गया। अब बताओ ऑर्डर ऑफ वन क्यों? आशीष, हाँ सर वही ऐसा टेल पॉइंटर यूज करके। चलो ठीक है, टेल यहाँ पे है और हेड यहाँ पे है और हमें इंसर्ट यहाँ पे करना है। इस जगह की पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करोगे? आशीष, यस जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। Have you got the idea of why we are making 2 pointers over here, Ashish? Have you got the idea? यस सर आई गॉट No, you. दैट। So बताओ फिर मेरे को मिडिल पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे? बताओ। नहीं पता? ठीक है, ठीक है। सो लेट्स से हमें मिडिल पॉइंटर की पोजीशन फाइंड करनी है, तो क्या हमें हेड से ट्रेवर्स करते 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 उस नोड पे नहीं जाना पड़ेगा जहां हमें इंसर्ट करना है? यस सर। यस सर। यहाँ पे अब 2 चीजें आती हैं जो तुम लोगों को समझना जरूरी है। पहली चीज, लिंक लिस्ट में कोई एड्रेस दे नहीं सकता, वो ये बता सकता है कि इंसर्ट एट पोजीशन 3 विच इज 3। अब 3 कोई एड्रेस नहीं होगा, तुम्हें हेड से काउंट करते हुए जाना पड़ेगा। जब जैसे ही तुमने 3 नोड्स पार कर लिए, काउंट इक्वल टू 3, उस पोजीशन में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। एंड नाउ दिस पोजीशन कैन बी एनीथिंग, n-2 भी हो सकती है, राइट? और हमें पता है कि लिंक लिस्ट एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं, तो तुम टेल से वापस नहीं आ सकते, तुम्हें हेड से ही ट्रेवर्स करना पड़ेगा। Which means in the worst case you have to go till n-1, right? n के लिए तो तुम्हें पता तुम tail से कर लोगे, but n-1 के लिए you have to go from head. So that's why the position you have to keep a count of how many nodes you have, inserted. After how many nodes you have to insert. So this way you have to do the insertion part. अब टाइम सबको समझ में आ गया, बिगिनिंग का, एंड का और मिडिल का कितना लगेगा? यस सर। यस सर। यस सर। आ गया समझे सबको? यस सर। चलो ठीक है, फिर अब मैं होमवर्क दे रहा हूं सबको कि मेरे को डिलीशन का और अपडेशन का, तुम्हें कहां, कैसे और टाइम, तीनों चीजें लिख के मेरे को दिखानी है। और मैं मानूंगा नहीं लिखा हुआ, मैं अगले क्लास में एक से पूछूंगा, मुझे देखना नहीं है। दिस इज द होमवर्क यू हैव टू डू। तो अगर आपको कहीं से किसी से हेल्प भी लेनी पड़े, whatever you want to do, you have to give me the correct answer. What I want is, मैं cross questions करूंगा and I want to know that you are very good with the basics. Am I clear to everyone? यस यस सर। Yes, sir. अमित, आर्यन, Yes, sir. श्वेता, संगीता, everyone. कस के सब बोल दो yes. Yes, कर sir. रहा हूँ।